Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with exercise A, comprehension of poem 2, Palanquin Bearers by Sarojini Naidu of your Wordsworth English Reader book. And I'm sure all of you must have written the poem, wow words, word meanings neatly in your English notebook. Students, today also I'm going to continue with the remaining exercises of poem 2, Palanquin Bearers. So all of you, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 39. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 39 as I am going to continue with the exercise of poem 2, Palanquin Bearers. Students, first of all, I am going to revise all the wow words of the poem. So please open your notebooks, look into the wow words and listen to me as I pronounce and tell you the spelling of the wow words. The first wow word is bear. That is B-E-A-R, bear. The second wow word is sways. That is S-W-A-Y-S, sways. The third new word is skims. And the spelling is S-K-I-M-S, skims. Now I am repeating these words so that you also pronounce the words correctly, because I've seen in the online class कि आप words को बहुत गलत pronounce कर रहे हैं. So please listen to me carefully and you also pronounce the words correctly. The fourth new word is foam. F-O-A-M, foam. F-O-A-M, foam. The fifth new word is gaily. That is G-A-I-L-Y, gaily. The sixth new word is glide. That is G-L-I-D-E, glide. The seventh new word is springs. That is S-P-R-I-N-G-S, springs. The eighth new word is beam. That is B-E-A-M, beam. The ninth new word is brow. That is B-R-O-W, brow. And the 10th new word is tide. T-I-D-E, tide. Once again, I'll repeat the new words. First, bear. Second, sways. Third, skims. Fourth, foam. Fifth, gaily. Sixth, glide. Seventh, springs. Eighth, beam. Ninth, brow. And 10th, tide. Now, let's revise the word meanings. Children, the first word is bear. B-E-A-R, bear. And bear means to carry. किसी भी चीज को उठाने को हम क्या बोलते हैं? bear. B-E-A-R, bear. आप animal जो bear होता है उससे confuse नहीं करेंगे. यहाँ B-E-A-R, bear एक verb है, which means उठाना, है ना? किसी भी चीज को जब हम उठाते हैं तो we bear it, we carry it. Got it? So don't get confused. Here bear is a verb, not a noun. Then the next word is sways. S-W-A-Y-S, sways means move slowly from side to side. What does sways means? Move slowly from side to side. Then the third word is skims. Skims moves quickly. बहुत जल्दी मूव करने को स्किम्स कहते हैं, है ना? और स्वे करना मतलब ऐसे ऐसे हिलना, है ना? आपने देखा है अगर तेज हवा चलती है तो पेड़ पौधे फूल कैसे ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो उस हिलने को हम क्या बोलते हैं? स्वेज. एंड स्किम्स मतलब मूव्स क्विकली. देन द फोर्थ वर्ड इज फोम. फोम मीन्स बबल्स. जब पानी में झाग बन जाता है, स्पेशली डिटर्जेंट डालो, शैम्पू डालो, तो झाग कैसे बनता है? उसमें बहुत छोटे छोटे बबल्स होते हैं, है ना, जो इकट्ठे हो जाते हैं.
तो बबल्स को हम फोम भी बोलते हैं, बुलबुले, है ना। झाग, झाग कैसे बनता है, बहुत छोटे छोटे पानी के बुलबुले रहते हैं, वो बहुत सारे हो जाते हैं एक साथ तो वो झाग बन जाता है, और झाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोम। एक्चुअली जो फोम है वो बहुत छोटे छोटे बबल्स को लेके बना हुआ है। Then the fifth word is gaily, and gaily means cheerfully, happily, कोई भी काम जो बहुत खुशी खुशी करते हैं, that is gaily, cheerfully, happily. Got it? Then the sixth word is glide. Glide means move slowly, धीरे धीरे आराम से चलना, बिना झटके दिए हुए, एकदम स्मूथ, है ना, बिना झटका खाते हुए स्मूथली चलने को क्या बोलते हैं, ग्लाइड करना। Then the seventh word is spring. Spring means jump. Spring करना, jump. आपने spring देखा है ना, उसको आप ऐसे प्रेस करोगे, छोड़ोगे तो वो कैसे ऊपर आती है ना, और कितनी बार तो उछल भी जाती है, तो spring means jumps. Then the eighth word is beam, and beam means light. Beam means light. Then the ninth word is bro, and bro means top. The ninth word is bro, and bro means top. Top मैंने आपको बताया था ना कैसे याद रखना है, हमारी बॉडी में जो आईब्रो कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो bro means आईब्रो मतलब टॉप, ऐसे ऊपर याद रखो, टॉप. And the 10th word is tide. Tide means wave. Tide means wave. So now I'm going to recite the poem Palanquin Bearers for you once again. Poem 2, Palanquin Bearers by Sarojini Naidu. Please listen to me carefully so that you can also recite it. Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of a song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of a song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. So I hope all of you have listened to me reciting the poem so that you can also pronounce the words correctly. Now students, I had started with exercise A in the last video and I had done the first 4 exercises. And I told you to do this exercise in the book. So first I'll revise the first 4. And the heading is choose the correct options to answer the following questions. The first one. Who are the palanquin bearers standing in the palanquin? The correct option is option B, the bride. And I hope सब बच्चों ने bride को टिक करके रखा है. The second. What are the palanquin bearers doing along with carrying the palanquin? The correct option is option C, singing a song. Then the third one. How are the palanquin bearers carrying the palanquin? The correct option is option D, lightly and softly. Then the fourth one. What is the poet comparing the bride to in the first 3 lines of the poem? And the correct option is option C, to a bird and flower. Now the fifth one. Now the fifth one is which pair of rhyming words has
be used in the home. And option A is bear and tear. The wind and grind. Option C is stream and dream. Option B is glide and slide. ओके, अब बेटा सबको राइमिंग वर्ड्स पता है कि नहीं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स को कैसे ढूंढना है, कैसे पहचानना है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, आई बी डूइंग इट, बट उससे पहले आप राइमिंग वर्ड्स पहचानना और ढूंढना सीखो। अब आप देखो पोएम, जिस पोम में हर लाइन का लास्ट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन करो। जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है बेटा? अलोंग, अंडरलाइन करो। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? सॉन्ग। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो वर्ड्स है अलोंग, सॉन्ग, ये सेम साउंड के वर्ड्स हैं, इनका साउंड सेम है, तो ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे? आपने जहां अलोंग अंडरलाइन किया है पोम की फर्स्ट लाइन का वर्ड, उसके नीचे आपने सॉन्ग को अंडरलाइन किया, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इनको ऐसे बुक में ही मार्क कर दो। ये दोनों क्या है? राइम कर रहे हैं, ये दोनों राइम कर रहे हैं, इनका सेम साउंड आ रहा है, ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स, गॉट इट। अब आप थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड देखो, वो क्या है? स्ट्रीम, और उसके नीचे जो वर्ड है वो क्या है? ड्रीम। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड क्या है बेटा? ड्रीम। तो स्ट्रीम और ड्रीम दोनों राइम कर रहे हैं, ये दोनों भी क्या है? राइमिंग वर्ड। इसको आप बुक में करो, सारे बच्चे इसको बुक में मार्क करेंगे, जहां पोम लिखी हुई है वहीं पे। फाइन, पहले हम सारे राइमिंग वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, है ना, जिनका साउंड सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा ये फर्स्ट 4 लाइन्स है ना। फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड अलोंग है और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड सॉन्ग है, ये दोनों अलोंग सॉन्ग राइम कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है। फिर थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्ट्रीम है और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? ड्रीम है। सो स्ट्रीम, ड्रीम, ये दोनों भी राइम कर रहे हैं। आप बुक में इसको ऐसे राइमिंग वर्ड्स लिख लीजिए। फाइन, ना अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब आप देखो सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सिंग, ठीक है, और सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रिंग। सिंग, स्ट्रिंग, है ना, इंगिंग वाले वर्ड्स हैं, राइम कर रहे हैं, है ना, इंगिंग वाले वर्ड्स हैं, ये राइम कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल्सो सिंग, स्ट्रिंग, राइमिंग वर्ड्स, जिनका साउंड सेम है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। अब आप देखो, उसके बाद फिर आया सेकेंड स्टेंजा की थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है अलोंग, और सेकेंड स्टेंजा की फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सॉन्ग। अलोंग, सॉन्ग, अगेन ये दोनों क्या है? राइम कर रहे हैं, क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स। क्लियर? सब बुक में इसको करती जाइए, है ना। सिंग, स्ट्रिंग, अलोंग, सॉन्ग, ये क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स। नाउ दी लास्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? टाइट,
और ये किससे राइम कर रहा है? थर्ड स्टेंजा की सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड इज ब्राइट। जनरली पोम्स में बेटा लास्ट वर्ड जो है राइम करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? टाइड एंड ब्राइट। अगेन दीज आर राइमिंग वर्ड्स, क्लियर। एंड थर्ड स्टेंजा की जो थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है दैट इज अगेन सिंग and string. Sing, string. Again these two words are rhyming. तो ये दोनों भी क्या हो गए? Rhyming words. तो अभी हमने 6 pair of rhyming words पढ़े, है ना। 2 pairs are there in all the 3 stanzas. 2 3s are 6. Okay. अब हमको देखना है कौन सा पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है। बैट है, कहीं था, नहीं, कहीं नहीं है। विंड एंड ग्राइंड, कहीं है, नहीं है। स्ट्रीम एंड ड्रीम, स्ट्रीम एंड ड्रीम। आप देखोगे फर्स्ट स्टेंजा में जो सेकेंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है वो स्ट्रीम और ड्रीम। ग्लाइड और स्लाइड भी नहीं है, तो कौन सा है हमारी बुक में? स्ट्रीम एंड ड्रीम। क्लियर? सो ये हमारा राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स है। क्लियर? तो अब आई होप सबको राइमिंग वर्ड समझ में आ जाते हैं। पोम की हर स्टेंजा की लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो डिपेंड करता है कि या तो सेकेंड लाइन के वर्ड के लास्ट वर्ड से राइम करेगा या थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करेगा। आपको वो राइमिंग पेयर देखना होगा कि किससे मिलता है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड्स ही पेयर करें। कभी कभी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड्स राइमिंग करते हैं तो उनका पेयर बनता है, और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड पेयर राइम करता है तो उनका पेयर बनता है। सो ये दिमाग में रखना कि खाली ऊपर नीचे वाले नहीं, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन, फोर्थ लाइन, उनके वर्ड्स लास्ट वर्ड्स भी राइम करते हैं तो पेयर बनता है। क्लियर? सो अभी ये विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज ए। अब हमारी एक्सरसाइज ए फिनिश हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ exercise B, that is think and answer the following questions. Think and answer the following questions. Now we have recited the poem, we know the meaning of the poem palanquin bearers. Let's revise. palanquin bearers किसको बोलते हैं? जो लोग डोली को उठाते हैं उनको palanquin bearers बोलते हैं। एंड palanquin के अंदर कौन जाती है? ब्राइड। palanquin bearers ने ब्राइड को किन किन चीज से कंपेयर किया, ब्राइड की मन में क्या फीलिंग्स चल रही है वो सब इस पोम में है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज question number 1. What do you think? What do you think are the palanquin bearers feeling in the poem?
नाउ वी नो द पोम एंड वी नीड टू राइट कि इस पोम में पैलिंक्विन बेरर्स को क्या फीलिंग हो रही है. फाइन. पैलिंक्विन बेरर्स को क्या फीलिंग हो रही है ये हमको लिखना है. सो द आंसर इज बेटा एक्सरसाइज ए हैव टू बी डन इन द बुक. अब हम एक्सरसाइज बी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो सब आप बेटा कहाँ करेंगे? नोटबुक में. दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन इन द नोटबुक. फाइन. नाउ think and answer the following questions. What do you think are the palanquin bearers feeling in the poem? So the answer is the palanquin. Please write the correct spelling. Palanquin. Palanquin bearers. Bearers. The palanquin bearers are happy. And singing a song while taking the bride to her new house. This is the answer. The question is, what do you think are the palanquin bearers feeling in the poem? हमने पूरी पोम पढ़ी है और palanquin bearers वो कैरी कर रहे हैं palanquin और उस palanquin के अंदर कौन बैठी है? ब्राइड बैठी है. और ब्राइड की फीलिंग्स क्या है? ब्राइड हैप्पी एंड सैड है बिकॉज हैप्पी शी इज गोइंग टू अ न्यू हाउस, हस्बैंड्स हाउस, एंड सैड बिकॉज शी इज लीविंग अ पेरेंट्स बिहाइंड. और उस ब्राइड को कौन कैरी कर रहे हैं? palanquin bearers ब्राइड के अंदर palanquin के अंदर कैरी कर रहे हैं. और palanquin bearers जब ब्राइड को उठाए हुए उस palanquin में तो दे आर वेरी हैप्पी और वो इतने खुश हैं. वो हैप्पीनेस में वो एक तो आराम से चल रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर वो फास्ट चलेंगे दौड़ेंगे तो palanquin डिसबैलेंस होंगी एंड ब्राइड जो है उसमें अनकंफर्टेबल हो जाएगी. सो वो बहुत स्मूथली palanquin को उठा के ले जा रहे हैं एंड दे आर सो हैप्पी. जब आप भी खुश होते हो तो आप गाना गाते हो तो वो अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए दोस palanquin bearers दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग. वो गाना गाते हुए आराम से धीरे धीरे बिना पालकी को डोली को झटका दिए हुए आराम से उठा के दुल्हन को लेके जा रहे हैं उसके न्यू हाउस में. एंड दे आर सो हैप्पी कि दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग. सबको पता है ना जब हम खुश होते हैं तो हम गाना गाते हैं. सो वो जब गाना गा रहे हैं तो वो खुशी में गाना गा रहे हैं. सो आवर आंसर इज द palanquin bearers आर हैप्पी एंड सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल टेकिंग द ब्राइड टू हर न्यू हाउस. palanquin में कौन बैठा हुआ है? दुल्हन को बैठाया है. दुल्हन को विदाई हो गई है शादी के बाद और उसको उसके न्यू हाउस में हस्बैंड के नए घर में कौन लेके जा रहा है? palanquin bearers. And they are so happy to carry the palanquin with the bride that they are singing a song. So again I am reading question 1, children. What do you think are the palanquin bearers feeling in the poem? And the answer is the palanquin bearers are happy and singing a song while taking the bride to her new house. The palanquin bearers are happy and singing a song while taking the bride to her new house. All of you please write this neatly in your English notebook and draw a parting line using a scale and pencil after each answer. Okay. I hope अभी सबने इसको लिख लिया. So I am going to erase this and write the second question.
Now, question number 2. Is the bride happy or sad in the poem? Why? अब हमने पूरी पोम पढ़ी. नाउ वी नीड टू टेल कि ब्राइड पोम में हैप्पी है कि सैड है. ब्राइड हैप्पी भी है बिकॉज शी इज गोइंग टू अ न्यू हाउस, न्यू हस्बैंड्स हाउस, एंड शी इज सैड बिकॉज शी इज लीविंग हर पेरेंट्स हाउस. वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के न्यू हाउस में जा रही है. तो ब्राइड को मिक्स फीलिंग है. शी इज सैड ऑल्सो एंड शी इज हैप्पी ऑल्सो. हैप्पी इसलिए क्योंकि वो अपने हस्बैंड के घर जा रही है, और सैड इसलिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जा रही है. सो द आंसर इज द bride is happy as well as sad in the poem. She is happy. She is happy because she is going to her husband's house. वो हैप्पी क्यों है? क्योंकि उसकी शादी हुई है और वो अपने दूल्हे के घर, हस्बैंड के घर जा रही है. एंड शी इज सैड because she is leaving. वो सैड इसलिए है क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जा रही है. लीविंग हर पेरेंट्स. एस के बाद अपोस्ट्रोफी. जब भी लास्ट में एस होता है एस के बाद लगेगा बेटा, ध्यान रखना प्लूरल में. पेरेंट्स हाउस. सो दिस इज द आंसर. The bride is happy as well as said in the poem. She is happy because she is going to her husband's house, and she is sad because she is leaving her parents' house. Fine. So I hope all of you have written this. Now students, I am going to erase this, and the next exercise has to be done in the book itself. Clear? अब आपको बुक में ही करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज. And the next exercise is literary appreciation. Okay. Now, find some more comparisons from the poem and fill in the blanks. ये हमको fill in the blanks करना है comparison से. Clear? Now let's write dash like a bird. She skims like a bird. इसको बेटा बुक में ही करना है. Dash like a star. She hangs like a
a star. Then floats like a laugh. Floats like a laugh. बुक से ही कंपैरिजन्स देख के लिखने. And springs like a bee. Done? So I hope all of you have done. Now, I'm going to erase this and I'm going to write the poem. Creative writing, the poem is I like. या अपने मन से कुछ भी आप पोम बना सकते हैं. Clear? Okay. And this again has to be done in the book only. Creative writing poem I like. Clear? So अभी अपने मन से कुछ भी पोम बनानी है. So I like the taste of toothpaste tingling on my tongue. मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हो तो जो टूथपेस्ट है वो आपके टंग के ऊपर टिंगल करता है. तो डोंट यू एंजॉय दैट? दैट ब्रिंग्स फ्रेशनेस इन योर. देन आई लाइक द स्मेल ऑफ समोसास. कहीं भी स्पेशली स्कूल के कैंटीन में जब समोसास बनते हैं और आपको स्मेल आती है, सो डोंट यू लाइक relishing the taste in my mouth. Fine. अब मैंने आपको दो लिखवाया है. I like the taste of toothpaste tingling on my tongue. I like the smell of samosas relishing the taste in my mouth. Then I like, मैं 3 लिखवाऊंगी और 2 आप अपने आप लिखेंगे. अपने आप. I need you to come out with your feelings. है ना? I don't want to force कि जो भी मैं लिखूँ वो आप लिखो. So I like the feel of sunshine flicking on my face. I like the feel of sunshine flicking on my face. Okay, fine, I'll only make you write. Yes. Then I like the sound of bells, घंटियों की आवाज, echoing in my ears. And the last line, but the most of all, but सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? But the most of all, I like the touch of my mother's hand ruffling my hair. So, ये मैंने अपनी फीलिंग्स हैं. आप चाहो तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो. Clear? And this has to be done neatly in the book. If you don't get enough space in the book, you can write in your notebook also.
this both these exercise जो लास्ट में हमने लिटरेरी अप्रिसिएशन किया है and creative writing, both of them are given on page number 42. So that's all for today. Thank you students. With this we have finished all the exercise of poem 2 Palanquin Bearers. Have a good day ahead.